Good morning, all of you. Welcome to your social science class. Students, today I am going to explain you the chapter 12 of your history. The name of the chapter is Impact of British Rule. Exactly this chapter from in your syllabus, this chapter is only for project purpose. So we will not learn this chapter fully. We will just take it the overview of the chapter. Okay, so let us read about the chapter. The name of the chapter is Impact of British Rule. Exactly in this chapter we will learn about the education policies of the Britishers, that Britishers started to educate Indians. And this is the first half of the chapter, and in the second half of the chapter we will learn about the social reforms and also learn about some famous social reformers of India. So the chapter is divided into two parts. Okay, so the first part is education policies of Britishers. Let us read about these education policies of Britishers. First of all, I am going to explain you the British view regarding the educating India. Exactly under this topic, we will learn that why Britishers want to educate India. उनका मेन एम क्या था इंडिया को एजुकेट करने के रिगार्डिंग. सो द मेन एम वॉज टू गेट प्रॉफिट. As we all know that Britishers are here in our country just to get profit. Okay, तो वो यहाँ पर सिर्फ किस लिए थे? प्रॉफिट के लिए. एंड टू गेट दिस प्रॉफिट दे ऑल्सो स्टार्ट एजुकेटिंग इंडिया. Second aim was to promote Christianity. Through the education, by educating Indians, they want to promote the Christianity. Christians बनाना चाह रहे थे वो Indians को. ठीक है. Thirdly, they want to create a class of persons, Indians in blood and color, but English in taste and opinion. बच्चे ये बड़ा इंपॉर्टेंट व्यू था ब्रिटिशर्स का. वो क्या चाहते थे? वो ऐसे भारतीय बनाना चाहते थे जो कि ब्लड एंड कलर दिखने में तो भारतीय हों, बट उनकी सोच, उनका टेस्ट, वो कल्चर जो अडॉप्ट करें वो टोटली कैसी हो? ब्रिटिशर्स की हो. ठीक है, तो वो कैसे भारतीय बनाना चाह रहे थे? जो दिखने में सिर्फ भारतीय हो, बट बिहेवियर वाइज इन ऑल टर्म्स दे शुड बी लाइक ब्रिटिशर्स. So these three are the main aims of the Britishers regarding to educate the Indians. Indians को educate करने के regarding. When the Britishers think about it, जब Britishers ने सोचा कि हम भारतीयों को educate करेंगे, then there is a controversy regarding the medium of education. That what will be the medium of education? Either the English or Hindi or any other language. So the controversy is here, and among this controversy two type of views are emerged. दो views हुए. One is known as Orientalist. एक विचारधारा रखने वालों को हमने क्या कहा? Orientalist. and दूसरी रखने वालों को क्या कहा? Anglist. Now we will learn that who were Orientalist and who were Anglist. So Orientalist, exactly, Orientalists are in the favor of traditional system of education, and they are in the favor of Sanskrit and Persian as a medium of instruction. वो क्या चाहते थे? They want the favor of traditional system of education and Sanskrit and Persian as a medium of instruction. On the other hand, Anglists are in the favor of English as a medium of instruction. What they want? They want English as a medium of instruction. वो चाहते थे कि British Indians को जो education दी जाए, that should be in English only, because by teaching them English they can create the Indians. Those are British in taste, those are Indians, those are in British in taste and opinions. ठीक है, तो वो इंग्लिश के ज़रिए ही ऐसे भारतीय बना सकते थे. सो दैट द इंग्लिश वर और ब्रिटिशर्स वर अंडर इन द फेवर ऑफ एंग्लिस्ट के फेवर में थे. ठीक है, चलिए, दोज कंट्रोवर्सीज आर गोइंग ऑन, बट अमंग दीज कंट्रोवर्सीज ब्रिटिश गवर्नमेंट
introduced some education policies. One of them is Charter Act, that was in 1813, that was started in 1813. Charter Act introduce किया गया 1813 में. Now what was the Charter Act? Charter Act क्या था? British directed to spend 1 lakh rupees for education. Under this Charter Act, Britishers ने क्या डायरेक्ट किया कि वो 1 लाख रुपीज़ स्पेंड करेंगे फॉर एजुकेशन. एंड अंडर दिस उनका मेन एम था टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियंस दैट इज़ ब्लड एंड कलर इन इंडियंस बट टेस्ट एंड वैल्यूज़ दे शुड बी ब्रिटिशर्स. ठीक है, तो ये था चार्टर एक्ट. अंडर द चार्टर एक्ट सम यूनिवर्सिटीज़ वर ऑल्सो ओपन इन इंडिया. चार्टर एक्ट के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी ओपन की गई थी इंडिया में. ठीक है, नाउ मैनी अदर एजुकेशन पॉलिसीज़ आर हेयर. वन ऑफ देम इज़ वुड्स डिस्पैच इन 1844. वुड डिस्पैच किया गया था 1844 में, इंट्रोड्यूस किया गया. अंडर दिस वुड डिस्पैच पॉलिसीज़ यूनिवर्सिटीज़ वर सेटअप इन इंडिया. यूनिवर्सिटीज़ सेटअप की गई. ट्रेनिंग फॉर टीचर्स विल ऑल्सो ओपन, और टीचर्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स ओपन किए गए. एग्जैक्टली जैसे आज के टाइम में हम बीएड करते हैं, जेबीटी करते हैं. दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द ट्रेनिंग फॉर टीचर्स, दैट हु विल बी द टीचर. जो टीचर बनना चाहते हैं वो बीएड करते हैं, ताकि उनको सिखाया जाता है कि हाउ दे हैव टू टीच. So this training was started in the Wood Dispatch of introduced in Wood's Dispatch in 1844. तो ये ट्रेनिंग जो थी वो वुड डिस्पैच 1844 में इंट्रोड्यूस करवा दी गई थी. ठीक है, उसके बाद नाउ वी विल टॉक अबाउट द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ वर्धा एजुकेशन स्कीम दैट वाज लॉन्च्ड इन 1937. 1937 में इंट्रोड्यूस की गई थी. एंड एग्जैक्टली दिस एजुकेशन पॉलिसी वाज इनिशिएटेड बाय गांधी जी. गांधी जी का इनिशिएट था. अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अकॉर्डिंग इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम मेड इंडियन स्लेव्स. कि ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम के थ्रू भारतीयों को क्या बना लिया है, अपना स्लेव, दास. एग्जैक्टली ही इज़ राइट ऑन दिस व्यू, बिकॉज इंग्लिश, जब हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे थे, इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे थे, तो वी आर बिकम द स्लेव्स ऑफ ब्रिटिशर्स. हम ब्रिटिशर्स के दास बन गए थे. सो दैट गांधी जी इंट्रोड्यूस सम न्यू थिंग्स इन द एजुकेशन सिस्टम, एंड दैट वाज मॉरल वैल्यूज़, ट्रुथ एंड जस्टिस. गांधी जी ने लोगों में ये वैल्यूज़ भी इनकलकेट करने के ऊपर स्ट्रेस किया और इनको एजुकेशंस में डाला. ठीक है, तो ऑल दीज आर द एजुकेशन पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिशर्स. ये सब क्या थी, ब्रिटिशर्स की एजुकेशन पॉलिसीज़. ठीक है, अब इन एजुकेशन पॉलिसीज़ के साथ साथ इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम की ब्रिटिशर्स की एजुकेशन पॉलिसीज़ का क्या प्रभाव पड़ा. ये तो मैंने सबसे पहले आपको क्या डिस्कस किया, एजुकेशन पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिशर्स की, जो पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स ने हमें इंट्रोड्यूस करवाई. नाउ वी विल लर्न द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम. ब्रिटिशर्स ने जो एजुकेशन भारतीयों को दी, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे ऊपर. ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस विद द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स. पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या थे ब्रिटिश की एजुकेशन पॉलिसी के. सबसे पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट था इंग्लिश लैंग्वेज यूनाइटेड द इंडियंस. येस, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज, एजुकेशन पॉलिसी. बिकॉज वी नो दैट ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को इंग्लिश लैंग्वेज में मीडियम में एजुकेशन देने को प्रेफरेंस दी. तो बिकॉज ऑफ दिस प्रेफरेंस नाउ इंडियंस आर वेरी मच फैमिलियर विद द इंग्लिश. एंड एज़ यू ऑल नो दैट इंग्लिश इज़ द यूनिवर्सल लैंग्वेज. इंग्लिश क्या थी, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज थी. तो इससे सभी भारतीय जो अपने व्यूज़ थे एक दूसरे के साथ बांटने में, शेयर करने में पॉसिबल हो सका, वो समर्थ हो सके. ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो इंडियंस को यूनाइट करने में हेल्पफुल रही. नाउ जो बिकॉज ऑफ दिस लैंग्वेज भारतीय जो थे वो यूनाइटेड हो गए. एंड बिकॉज ऑफ यूनिफिकेशन वन मोर थिंग इज़ हेयर दैट
द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म स्प्रेड अमंग द इंडियंस, लोगों के बीच में नेशनलिज्म की जो भावना थी वो स्प्रेड हो गई, ठीक है। एंड इट अवेयर दैम रेगुलर रिगार्डिंग द सोशल रिफॉर्म्स। देखो 3 मेजर इम्पैक्ट हुए। वन कि इंग्लिश ने सभी भारतीयों को, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियंस को यूनाइट कर दिया, ठीक है, और वो एक नेशन के रूप में उभर कर आए। एंड बिकॉज ऑफ दिस it nationalism, the feeling of nationalism also inculcate among them, or we can say create among them. And third one, that now educated Indians were also aware regarding the social reforms. Now they want a very good society in without any social evils. अब वो कैसी सोसाइटी चाह रहे थे? अ सोसाइटी दैट डोंट हैव एनी सोशल इवल्स, जिसमें किसी भी तरह के कोई सोशल इवल्स ना हो, ठीक है। तो दीज आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसीज। नाउ वी विल डिस्कस द नेगेटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहे? बिकॉज ऑफ इंग्लिश सोसाइटी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। वन, दोज आर एजुकेटेड इंडियंस, सेकेंडली दोज आर अनएजुकेटेड रेस्ट इंडियनस। और अब व्यूज़ भी डिफर थे। जो एजुकेटेड इंडियंस थे वो एक अच्छी सोसाइटी चाहते थे, इवल्स फ्री सोसाइटी चाहते थे, बट जो अनएजुकेटेड इंडियंस थे वो एज इट इज़ ही रहना चाहते थे जैसी हमारी सोसाइटी है। जैसे बहुत सारे एट दैट टाइम बहुत सारे सोशल इवल्स प्रेजेंट थे सोसाइटी में, तो वो वैसी ही सोसाइटी चाहते थे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, दैट इंडियन लिटरेचर एंड थॉट्स वर इग्नोर्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नेगेटिव इम्पैक्ट था कि ब्रिटिशर्स ने सिर्फ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ग्लोरीफाई किया, अपनी लिटरेचर को ग्लोरीफाई किया, एंड दे इवन नॉट इंट्रोड्यूस इंडियन लिटरेचर इन देयर एजुकेशन सिस्टम। उन्होंने भारतीय लिटरेचर को टोटली निगलेक्ट कर दिया। इससे क्या हुआ कि हमारी जो विचारधाराएं थी, हमारी जो सोच थी और हमारी जो लिटरेचर थी उसके प्रति भारतीय जो थे वो टोटली अनअवेयर हो गए, इग्नोर हो गए, उनको वो चीज़ समझाई ही नहीं गई, बताई ही नहीं गई, ठीक है। तो दिस आर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी। दैट्स इज अबाउट योर एजुकेशन पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स। द विद दिस फ्लो चार्ट आर फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट पार्ट है चैप्टर का, दैट इज़ ओवर नाउ, ओके। तो in the next video we will discuss the second part of the chapter, that is social reforms, okay. Thank you.